हेलो दोस्तों। मैं विशाल बोरा आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। फाइंड माय टेस्ट के इस चैनल पे अपन स्वागत करते हैं अभिषेक का, जिन्होंने गेट में काफ़ी अच्छी रैंक हासिल की है। जो कि 2023 का काफ़ी पॉपुलर एग्जाम था, गेट 2023 एग्जामिनेशन। उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी रैंक हासिल की है। आज हम जानेंगे अभिषेक से उनकी प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में। और काफ़ी क्वेश्चन हैं हमारे पास उनके लिए, जिनमें उनसे सवाल किए जाएंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे इतनी अच्छी रैंक लाई और क्या उनके तरीके थे प्रिपरेशन के। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू अभिषेक फॉर सिक्योरिंग एन अमेजिंग रैंक इन गेट 2023 एंड Thank you so much, sir. yeah, please in give your introduction, like what is your name and where have you done your engineering from? So, my name is Abhishek Sharma, and I am natively from Mathura, and I have completed my BTech in Computer Science and Engineering from Bundelkhand Institute of Engineering and Technology, Jhansi, and so I have secured All India rank 26 in GATE 2023. Okay, in which paper of gate? So it's in Computer Science. Computer science and engineering. Great. So how many times have you attempted in gate exam? So my first attempt was last year when I was in third year, and this was my second attempt in my final year. Okay, when did you decide that you want to attempt GATE exam as a serious career option? When did you started preparing for GATE 2023? Actually, sir, when COVID just started, so we were all at home, Mm-hmm. and like we all were free and we were having choice to whether we should focus on placements or we should go some higher for higher studies. So I just gave it a thought, and I just thought, okay, maybe the placement scenario may not be that good in the upcoming time when I will be in final year, and Mm-hmm. actually that's the scenario right now. And so I thought that I should utilize my time for some preparation. So I've started to give some serious time to the subjects which are asked in gates, and so I just appeared for the third year attempt also. So Okay. basically, my rank was not that good. I've just secured 1420 rank in my third year, and then this was my second attempt. Okay. So second attempt में तुमने 26th रैंक अचीव किया, राइट? Yes, sir. ओके, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन सा रैंक बताया तुमने? 1 4 20. 20। ओ अमेजिंग, तुमने मतलब 1420 से डायरेक्ट 26 पे जंप किया। ये रियली अप्रिशिएटिव है। और ये समझ सकते हैं काफी हार्ड वर्क के बाद ऐसा आया है। सो आज जानेंगे कि ये तुम्हारा जो जंप इतना बड़ा तुमने लगाया वो कैसे लगाया। ये पूरी चीज हम आपसे जानेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर तुमने जैसा बताया कि इट इज योर सेकंड अटेम्प्ट, और 21 में 21 में तुमने 22. 22 में तुमने एग्जाम दिया था। सो 22 के पेपर को और 23 के पेपर को अगर तुम एनालाइज करो तो डिफिकल्टी लेवल तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या था दोनों पेपर्स का? So basically, I think I gave a serious attempt in third year also, but I think the level of paper was somewhat moderate to tough, हम्म। and surely like it was not at all easy. Questions level was quite good, but when compared with this year's exam, so its level of exam was I will say somewhat in easy to moderate, and so that's why even the first rank has gone for 93, and there's where even on the high marks there is low grade score this year. So level of paper was definitely easy, and I think like in the past few years it was the easiest paper this year. ओह रियली? So last year was a bit tough. ओके। सो अभिषेक, काफी सारे स्टूडेंट्स आजकल कैट के तरफ जाते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन में Yes, लग sir. जाते हैं अपने फर्स्ट ईयर से ही, एसएससी में लग जाते हैं, बट तुमने गेट को अपना ऑप्शन चुना। ये थोड़ा सा हटके, ऐसा क्यों चुना? क्या तुम गेट से हायर स्टडीज के लिए चुनना चाह रहे हो गेट को, या फिर कहीं पीएसयूज में तुम गेट के थ्रू जाना चाह रहे हो? क्या रीजन था तुम्हारा गेट को ही फोकस करने का? कोई अदर ऑप्शंस को तुमने स्किप क्यों किया? गेट को ही क्यों चुना? Actually, sir, like from my childhood only, I was like kind of fascinating in technologies and especially in computers. ग्रेट। So for that motive, I joined computer science and engineering, and then like I was not having that interest in any subjects which are basically asked in civil services exams like GS and that kind of. And so I was having interest in this field. So I wanted a exponential growth in basically in this field. So I'm from tier 3 college, so there are not that high placement scenario here.
So for that reason, I just chosen GATE because this was my field which I was interested in, and definitely I can grow in this field. So I've chosen GATE for higher studies. Definitely from like if I go for some good college, then it would be better for me. ओके। तुमने 12th के बाद जेई का एग्जाम जरूर दिया होगा क्योंकि तुम बीटेक फील्ड में हो। सो Yes, जेई sir. में तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक क्या था, क्या हम जान सकते हैं? Yes, sir. Like in JEE Advanced, basically my rank was about 17,000 something. 17,000। सो तुम्हें आईआईटी नहीं मिला होगा उस टाइम पे, राइट? No, sir. Yes, sir. IIT I haven't got. ओके। सो मतलब Yes, sir. 17,000 रैंक उस टाइम पे और आज गेट में 26 रैंक ऑल इंडिया रैंक। ये गाइज आप देख सकते हैं कि जब जागो जब सवेरा, जिस दिन आप मेहनत तरीके से लगन से करने लगते हैं, मंजिल आपके कदमों में होती है उसी वक्त। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुमने जो प्रिपरेशन करी, पूरी इस प्रिपरेशन के दौरान तुम्हारा रिवीजन का क्या स्ट्रेटेजी रहता था? क्योंकि अपन शुरू में जो पढ़ते हैं वो कुछ टाइम बाद भूलने लगते हैं। सो उस चीज को तुम कैसे Yes, sir. हैंडल करते थे कि रिवीजन किस तरह करते थे कि पूरे साल तुमने हर चीज को टाइमली पढ़ा, याद रखा और सही से परफॉर्म किया? तो रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी तुम्हारी? Sir, basically, like as we study some subject and when you migrate to other subject, like the previous subject's memory is bit getting blurred. So like it's important after you complete the subjects after a month or so, you must revise that subject. And like I was, my plan was basically that when I completed my subject after a month, I giving the first revision cycle, and then after a second month, I was giving another revision cycle from my long notes only. So that's how like I kept them those subjects refreshed in my mind because that's important. You are studying about 10 to 12 subjects for the gate, and if you just not revise, then it will all just vanish off with time. So it's important to revise. And like as you get near to the exam, it's important to maintain short notes also because you can't always study from long notes because it takes time to study from long notes. And once you are like familiar with long notes, the important some basic concepts, then you need not give much time to them, so you can go for short notes. So at last time I'll say short notes are really valuable. So that's what my strategy. ओके। सो फॉर द गेट प्रिपरेशन मैं पूछना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज को तुम कितना महत्व देते हो? लाइक क्या विदाउट टेस्ट सीरीज और विदाउट कोचिंग गेट को क्रैक करना आसान है? तुमने भी कोई कोचिंग ली या फिर टेस्ट सीरीज ली या नहीं ली? तुम्हारे लिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज एंड कोचिंग का इंपॉर्टेंस गेट को क्रैक करने में कितना है? So as per me, like whether it's coaching or not, the one thing I'll say that you are giving a year or two for your preparation. So your content should be high quality because like you are preparing for the whole year. If you will not get the good results, then it will surely hurt you. So even if you prepare self or you go for some coaching, the one thing that you should make sure that you should have a good content. So I basically have prepared. I got a course videos from one of my senior, so I prepared from that. So I didn't require any kind of coaching or so. And coming to test series, so test series is very important, I think. Like I've seen few toppers also, like they have attempted 2 or 3 tests also, and then they still topper. So I'll not say about that, but I think test series is really important because on that day you have many issues, like you have anxiety and so, and all these things like and your silly mistakes especially. So these things you are maintaining in your test series only. So I think like before at least going for the original GATE exam, you should have attempted at least 15 or 16 full length mock tests at least. That's really important for you to get a good content. अभिषेक ने बताया कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सभी को टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए गेट को क्रैक करने के लिए। अभिषेक, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि there are so many candidates, so many students who is not able to pay to the coachings, pay the higher fees of test series. So ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फ्री सोर्सेज क्या होंगे, या ऐसे स्टूडेंट्स क्या गेट क्रैक कर ही नहीं सकते? तो उनके लिए तुम क्या बोलना चाहोगे? कुछ फ्री सोर्सेज बताओ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत वीक है, जो कैपेबल नहीं है पे करने के लिए कोचिंग फीस को, जो कैपेबल नहीं है पे करने के लिए टेस्ट सीरीज के अमाउंट को। सो उनके लिए वो कौन सी बुक्स होंगे इम्पोर्टेंट, वो कौन से फ्री सोर्सेज होंगे जहां से वो गेट की प्रिपरेशन करके बहुत अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं या एटलीस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं? सो प्लीज शेयर सम बुक्स नेम which can be very helpful for all those candidates who are not capable to pay the fees and all. So sir, basically like talking about
some exam like GATE or JEE, like these are one of the quality exams of our country. So basically, we have a lot of content on YouTube right now also. So if we talk about just qualifying this exam, or I'll say just especially in our country, there are many exams like so such a like basically talking about any of the exams like GATE or JEE, definitely they are conducted by the top institutions. So the level of the exams is really good, and like whatever be your source, it should be like reliable first of all. And especially like when you talk, if you are want to get under 1,000 or under 500, then that's definitely possible by some of the content that's already available on YouTube by some of the famous faculties. And also one can refer to the standard books, like for every subject there are standard books available. Like it's not required that you should purchase the other physical book. There are PDFs available for those really good books. So that's one of the source one can refer. And the only thing that one should be judicious about is like when they're studying even from the YouTube or any books they are referring, the content should be of quality because they are giving their valuable time for that. And so if you want to qualify with really great rank, then you should be very selective about the content, what you should study and from where you should study. So I'll say that like YouTube and books are fine. Like Okay. if you So want to go for field. can you share the name of some books? Yeah, like there are many like from for computer networks there is Tannenbaum, and there's also Dragon Book for compiler design, and CLRS for algorithms, and so many more books. Such books are there. One can refer. So they are definitely good standard books. Okay. So The what are only some thing that like with standard books is that there is lots of content, and that content is not basically just for GATE. So you should be very selective about that. okay, perfect. So what are some important topics that should be especially focused by the GATE aspirants to qualify the GATE CS paper? So if it's about qualifying the examination, then there are few topics. You need not go much in depth of those subjects. For every subject, you should have some idea. You need not go into much of the depth, but you should have breadth idea of everything. And I also suggest that even if you don't like any particular subject, don't leave the subject completely. Like you can do the few topics which are important or which are often asked. By referring to the previous year questions, we can understand which questions or which topics are basically asked most of the times. So one can prepare from those subjects. So we should have a breadth coverage of all the subjects. So it's fine for qualifying the examination. ओके सो बात रही ये पूरी प्रिपरेशन की। अब बात करते हैं एग्जाम टाइम की। लाइक जब भी अपन पूरी प्रिपरेशन से टेस्ट देते हैं घर पर अपने, टेस्ट सीरीज में जब भी Yes, कोई sir. टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें अपन अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेते हैं। वो एक मोटिवेशन अपने लिए पूरे साल के लिए रहता है कि हाँ मेरे अच्छे स्कोर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में। बट जब अपन एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, दैट टाइम पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है अपने लिए, सो उस टाइम पे अपने आप को कैसे काम रखा जाए, अपने आप को कैसे हैंडल किया जाए। और जब अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वही अपन को नहीं आ रहा होता है, सो उस कंडीशन में कैसे डील किया जाता है। और वहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटेजी होती है। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी फॉर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल, एंड वहां पे तुमने कैसे डील किया पूरे पेपर के साथ, जब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो भी कैसे अपने आप को काम रखा, कैसे पूरा परफेक्ट तरीके से तुमने पेपर को दिया। तो इसके बारे में कुछ शेयर करो। So like one thing I would like to share about me only, like before this exam only, a day before exam, a night before exam, I haven't slept because of anxiety, and it was too much anxiety. And so also I was having a headache at the time before, just before exam. So I prepared the whole year with full dedication, and just before exam you are having headache. So a kind of fear is developed in you, like what will happen in the exam, whether you will perform great or not. So the one thing I'll say that even if to perform great in the exam hall, you should be dedicated in your preparation journey. If you have give 100%, you have give consistent effort in your preparation journey. So in the exam hall, you will automatically develop that confidence. Once you will sit on the chair, just don't think much about whether I'll qualify or not, whether what marks I'll be scoring, whether exam will be tough or easy, whatever. Like whatever be the level of exam, it will be for everyone. This is for everyone. So just think about that.
Okay, sir. Like whatever be your preparation level, like at the time of exam, once the only thing you should that matters for you is that I'll give my best, and that's what actually matters in the exam hall. That will just down your temper. And for definitely for few the starting time, like 5 to 10 minutes, you feel so like, I also remember the first aptitude question I've attempted was so easy, but I was not able to understand it, what I have to do in that question. That was really so easy, but that was the first question, and that anxiety in you. But just try to have a long breath at the time, and as the time will pass, you will just become calm, and you will be able to attempt most of the questions very well. If you are prepared well, then it won't be the issue in the exam. राइट। और एग्जाम से मतलब तुमने पूरे ईयर अपना शेड्यूल रखा होगा, जो शेड्यूल तुमने रखा वो एग्जाम से एक वीक पहले 100% चेंज कर लेते हैं अपने शेड्यूल को कि क्या पढ़ना है एक हफ्ते पहले। कुछ बच्चे तो एग्जाम से 2 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ इतना पढ़ते हैं कि जैसा तुमने बताया तुम सो भी नहीं पाए थे कि एनजाइटी हो गई थी। तो तुम्हारा वो एक Yes. हफ्ते पहले का शेड्यूल क्या था एग्जाम से एक हफ्ते पहले? तो एक हफ्ते पहले का सर ऐसा था कि एक हफ्ते पहले मैंने ऑलमोस्ट स्टडी अपनी रोक दी थी, एंड आई वाज कंप्लीटली लाइक गिविंग माय टेस्ट ओनली। एंड उसके बाद लाइक मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उस टाइम आपको दिमाग अपना थोड़ा सा रिलैक्स रखना होता है, क्योंकि आप पूरे साल बहुत ही रिगरस जर्नी में रहे हो। और उस टाइम लाइक जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको अपना 100% देना है। तो वहां पे आपको अपने दिमाग को, स्पेशली इन द एग्जाम वीक, लाइक आपका दिमाग एकदम काम होना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप मूवी देख सकते हो, या बस ये है कि किसी भी चीज में बहुत ज्यादा एंगेजिंग नहीं होना चाहिए, और आपका दिमाग लाइक शांत रहना चाहिए ओवर द टाइम, ताकि आप उस दिन ग्रेट परफॉर्म कर पाओ। एंड लाइक जस्ट 2 दिन पहले तो लाइक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, मैंने टेस्ट सीरीज भी नहीं दी थी। आई वाज जस्ट काम, लाइक सिटिंग विद माय फैमिली, स्पेंडिंग लाइक काइंड ऑफ टाइम, ताकि लाइक मैं काम रहूं बिल्कुल, क्योंकि एंजाइटी होती है उस टाइम पे। हर एस्पिरेंट जिसने अगर सीरियसली प्रिपेयर किया है तो उसको उस टाइम पे आके थोड़ी सी एंजाइटी जरूर होगी। तो उस चीज को थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। जैसा तुमने बताया कि मूवी भी देख लो, तो उस टाइम पे अगर अपने घर वाले आ जाएं कि भाई हफ्ते भर बाद इसका ऑल इंडिया वाला इतना बड़ा एग्जाम है और ये पिक्चर देखने में लग रहा है, अच्छा। तो ऐसा तुम्हारे साथ कुछ सीन हुआ? क्या तुमने कोई मूवी ऐसा देखी कुछ तो पहले? लाइक ऐसा कोई सीन तो नहीं था। मेरा ऐसा था कि मैंने बहुत ज्यादा मूवीज रेफर नहीं की। मैं क्या करता था, मैं बाहर चला जाता था टहलने। जनरली मैं जब एक हफ्ते पहले से जब मैं पढ़ता था तो मैं बहुत रिगरस टाइम देता था, पूरा पूरा कई बार दिन चला जाता था, तो उसमें चला जाता था। लेकिन उसके बाद फिर एक हफ्ते मैंने लाइक थोड़ा बाहर टहलना रेफर किया। लाइक मूवी से बेटर तो मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा नेचर में जाएं, थोड़ा सा बाहर टहलें, उससे थोड़ा आपका दिमाग ज्यादा रिफ्रेश होता है। तो ये सब चीजें रेफर कर सकते हैं। और फैमिली का मेरा ऐसा था कि उन्हें पता था कि इसने पूरे साल प्रिपेयर किया है, तो वो भी ये चाहते थे कि थोड़ा सा काम रहे एक हफ्ते में। तो हम्म। ऐसा इशू था नहीं कुछ। फैमिली का फुल सपोर्ट था तुम्हें पूरी पढ़ाई के लिए? यस सर। ग्रेट। यस सर। तो व्हाट वाज योर डेली टाइम टेबल अगर तुमने शुरुआत की अपनी गेट 23 की प्रिपरेशन फरवरी मंथ से या मार्च अप्रैल से, तो वहां से लेके लास्ट तक क्या टाइम टेबल था तुम्हारा? किस सब्जेक्ट को कब पढ़ते थे? कितना आवर्स तुम डेली अपने स्टडी को गेट डेडिकेटेडली गेट को देते थे? लाइक जब फरवरी 2022 का एग्जाम हुआ था, उसके बाद मैं सर, उसके बाद मैं जब कॉलेज आया था, तो कॉलेज में हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे। तो कम से कम मेरे 2 ढाई महीने, 2 3 महीने तो मतलब मैंने बिल्कुल सब्जेक्ट्स उठाए ही नहीं थे। उसके बाद मैंने जून जुलाई में आके अपने सब्जेक्ट्स दोबारा लाइक उठाए थे। तो ये होता था कि लाइक अगर सुबह से क्लासेस हैं तो मैं कोशिश करता था थोड़ा जल्दी उठने की, ताकि मैं सुबह के टाइम 1 1.5 2 घंटे अपने रिवीजन साइकिल को दे सकूं। और फिर कॉलेज से वापस आके मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपने सब्जेक्ट्स पे देता था, जो मुझे लगता था कि उनको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, या उनके कॉन्सेप्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो उस चीजों को मैं टाइम देता था। पॉइंट ये है कि आप कहीं भी होते हो, लाइक अगर आप घर पे हो तो आपकी जिंदगी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, बट क्योंकि ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता नहीं है स्टूडेंट्स के साथ। मोस्ट ऑफ द लाइक अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या थर्ड ईयर स्टूडेंट हो तो आप कॉलेज में रहते हो। तो एक कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि आपका टाइम तो हेक्टिक रहेगा, आपकी क्लासेस किसी और टाइम पे होंगी। कई बार मतलब मैंने भी कोशिश की है, लेकिन एक पर्टिकुलर शेड्यूल बन नहीं पाता है। अगर आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कभी कोई काम आ जा रहा है, कभी कुछ, और आप कई बार काम अवॉइड नहीं कर पाते हो, कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं बीच में। तो आपको मेनली कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी टाइम आपको मिल रहा है, आप एटलीस्ट उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा मैटर करता है वहाँ पे। अगर आप वो चीज कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और लाइक मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि ड्यूरिंग अक्टूबर मंथ, मतलब मेरी फैमिली में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो गए थे। तो अक्टूबर मंथ में तो मैंने बिल्कुल लाइक नोट्स बुक्स कुछ उठाया ही नहीं था, मैंने पूरा टाइम फैमिली को दिया था। उस टाइम मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं गेट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, लेकिन लाइक फैमिली वॉज प्रायोरिटी, तो मैंने उसको उस पर टाइम दिया था। फिर नवंबर में आके मैंने फिर से अपना स्टडी दोबारा स्टार्ट की, और
चीजें मतलब नॉर्मली हो गई। अगर आपने डेडिकेटली प्रिपेयर किया है तो कई बार इश्यूज आपको हम कर नहीं पाते हैं। राइट राइट। सो डेडिकेटेडली तुम डेली कितने आवर्स देते थे अपनी पढ़ाई को, मतलब कैलकुलेट करो अगर तुम पूरे दिन का 1 घंटा 2 घंटा, कितना घंटा तुम्हारा पढ़ाई को जाता था? ऑन एन एवरेज मैं कहूँगा कि लाइक 10 घंटे तो हो जाता था। और कभी कभी लाइक अगर मेरी छुट्टी है या ऐसा मुझे टाइम मिल जाता था तो 15 घंटे भी चला जाता था, तो ऐसा रहता था। 15 घंटे मतलब कॉन्टिन्यूसली बिल्कुल एक साथ, या फिर मतलब लाइक ऐसे एक दो घंटे मैंने जैसे पढ़ा, थोड़ा बहुत मैंने लाइक इंटरनेट सर्फ किया 10-15 मिनट, या अभी वीडियोस देख लिया, उसका फिर मैंने कंटिन्यू किया। क्योंकि लाइक कंटिन्यू तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, मुझे लगता है कि आप इतना टाइम दे पाओ। बट हाँ, ये होता है कि आप कंसिस्टेंट हो, आपको पता है कितना टाइम देना है। और लाइक वो उतना टाइम 15 घंटे भी तब हो पाता था जब कोई क्लासेस नहीं है या कहीं बिजी शेड्यूल नहीं है। तो अगर मुझे टाइम मिलता था तो फिर मैं उतना देने की कोशिश करता था। ग्रेट ग्रेट। सो तुम्हारी इस प्रिपरेशन की जर्नी में क्या एक्सरसाइजेज और योग का भी कुछ योगदान है, या फिर से बिल्कुल दूर थे तुम और अपना बस पढ़ाई का ही एक काम नहीं था? सर, थोड़ा बहुत मैं करता था। लाइक सुबह उठ के मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की कोशिश करता था। और मैं लाइक एस्पिरेंट्स को भी ये सजेशन दूंगा कि उन्हें बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप मतलब बहुत कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करते हो, बहुत इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हो। बट एक पॉइंट के बाद वो चीज जब मोनोटोनस हो जाती है तो फिर आपका दिमाग थोड़ा सा स्ट्रेस होने लगता है। उसको डी स्ट्रेस करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए। एंड कुछ लोग मतलब उस चीज के लिए शायद वेब सीरीज या वीडियोस को रेफर करते हैं, बट मैं वो सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है उससे स्ट्रेस और बढ़ ही जाता है, घटता तो नहीं है। तो वो बेटर है कि आप वर्कआउट करें, या अगर आप बाहर टहलना के लिए कुछ टाइम अपना अलॉट करें दिन का, तो वो ज्यादा बेटर होगा, ताकि आपका माइंड काम रहे। क्योंकि एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, आप ऐसा नहीं कि आप 2 दिन रिग्रेस पढ़ लेंगे उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो आपको एक पूरे साल वो मेंटेन रखना है। तो अपने दिमाग को बहुत अच्छे स्टेट में रखने के लिए वर्कआउट या एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो जरूर करनी चाहिए। इधर इट्स कैन बी स्पोर्ट्स और एनीथिंग। ग्रेट। So, any suggestion for GATE CS aspirants who are preparing for GATE 2024? यस सर, श्योर। लाइक बहुत से एस्पिरेंट्स को अब ये लाइक इस बार क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी साइड था, जो कि मतलब कभी मुझे लगता है आया नहीं। मैंने लाइक से 10 साल के एग्जाम्स देखे तो इतना इजी पेपर तो नहीं था। और पिछले साल का पेपर ही अच्छा खासा लेवल आया था। तो मैं उन्हें यही कहूंगा कि अपना लेवल अच्छा रखें और थोड़ा सा हार्डेस्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करें। कई बार लोग मॉडरेट के लिए इजी के लिए प्रिपेयर करके चलते हैं कि हो जाएगा, बट ऐसा ना सोचें। अपना लेवल आप अच्छा रखें, पेपर कैसा भी आएगा वो सबके लिए बराबर आएगा। तो अपना लेवल लाइक अच्छा रखें, बस अपनी प्रिपरेशन जितना टॉप नॉच आपकी हो सके। और कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू होता है। मैंने मतलब अपने आसपास भी एस्पिरेंट्स साथी बहुत ज्यादा देखा है। वो चाहते हैं करना, प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं, उन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया भी होता है, बट एक एंड पॉइंट पे जाके दिसंबर में जनवरी में लाइक जब प्लेसमेंट स्पेशली स्टार्ट हो जाते हैं तो वो डेविएट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो लाइक ठीक है, वो सबके अपने अपने इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करनी चाहिए। कभी आपका दिन अगर बहुत बिजी भी हो जाए, तब भी कोशिश करें कि 2-3 घंटे तो निकाल लें स्टडी के लिए। कंसिस्टेंसी बना के रखें, एकदम से छोड़ना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो ये है कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे पूरे साल, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। लाइक इससे भी बेटर रैंक आप स्कोर कर सकते हैं। Great. So once again, congratulations Abhishek to you and your whole family members, क्योंकि बिना फैमिली सपोर्ट के इतने अच्छे से पढ़ाई करना it was not possible. So once यस again, सर। congratulations and thank you so much for giving your valuable time to us. And हम चाहते हैं कि तुम इसी तरह से सक्सेस को पाते रहो, आगे बढ़ते रहो और एक दिन अपने मुकाम तक पहुंचो। थैंक यू सो मच थैंक यू अभिषेक। सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।